Good evening, everyone. Hope you are doing good. On behalf of DG Saksham family, I welcome you for the webinar on the topic how yoga can boost immunity and manage stress, which is very much required nowadays. Now, without wasting any time, let me introduce the expert of today's webinar, Acharya Kaushal Kumar. He is renowned Yogacharya working in the field of yoga from the last 33 years. He was pursuing his MPhil in economics from the Delhi School of Economics, met his guru Swami Satyanand and left his studies in between and joined yoga in 1987. He was with the guru of 3 years and after it opened his own school of yoga. He had been continuously serving humanity through yoga since then. He has conducted and organized thousands of yoga camps and seminars. His yoga programs has been telecasted daily on Doordarshan and various other news channels. His regular weekly columns are published in almost Hindi national newspapers and monthly magazines. He has written about 10 books on yoga. He has given yoga teachings to various prime ministers and central ministers of India and many big business offices. He has visited many foreign countries to propagate yoga. He is specialized in yoga therapy and he has worked with the Health, Ayush and HRD ministry to popularize yoga not only in India but abroad too. This yoga technique is helpful in curing depression, stress, anxiety. His yoga is helpful in improving focusedness, concentration, and control on mind, which result in increased willpower, confidence, creativity, determination, tolerance, positivity, and to channelize our energy to higher goals. So now I would request Sir to take over the session. Thank you, Sakshi. Hi, friends. Namaste. I welcome you all. Myself, Kaushal, and as Sakshi had given my introduction, I was doing my MPhil in economics from Delhi School of Economics, and suddenly I met my guru and left my studies and went to the ashram. I was there for 3 years, but suddenly one day my guru left the ashram himself. Then I have to leave the ashram, otherwise I have to be a monk. Now let me start our topic. The topic is how yoga can boost immunity and manage our stress. The first thing in this topic is yoga, and I think all the immunity and stress, they are revolving around the yoga. So first we have to understand yoga. वैसे तो योगा जो है मेरे ख्याल से अब सब लोग जानने लगे हैं. Most of us know about yoga, but I don't think that we know the real type of yoga. What is the real yoga? What our ancient rishis and sages has asked about yoga, I don't think that most of us know about it. Most of us know about the very physical type of yoga. We do not know what is real yoga. So first we have to understand about yoga. And I start this from a very pertinent question from all of us. That a question is कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, हमने जीवन क्यों लिया है और हमारे जीवन का मोटो क्या है, हम जो कुछ भी करते हैं वह किसकी तरफ रिवॉल्व करता है. तो आप ये देखिए, अगर बहुत गहराई से आप सोचें, इफ यू थिंक इट डीपली, तो आप ये देखेंगे कि जो कुछ भी हम करते हैं वह अपनी खुशी के लिए करते हैं. जो कुछ भी करते हैं, ऑल आवर ह्यूमन एक्टिविटी, द एम ऑफ दिस इज जस्ट टू मेक अचीव हैप्पीनेस. सब कुछ हम हैप्पीनेस के लिए करते हैं. अब फिर हैप्पीनेस की बात आती है तो किसके हैप्पीनेस के लिए करते हैं? अपने हैप्पीनेस के लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं. तो कहने का अभिप्राय ये है, आई वांटेड टू से दैट आवर एवरी एक्टिविटी रिवॉल्व्स अराउंड आई, मी, माई सेल्फ. बट आई आस्क्ड ए क्वेश्चन, डू यू नो योरसेल्फ? क्या हम अपने आप को जानते हैं?
हमारे वेद में एक कहानी आती है, वेद और उपनिषद में एक बहुत महान ऋषि हुए थे, उनका नाम था याज्ञवल्क। बहुत बड़े ऋषि थे, और आप यूं कहें कि सप्त ऋषि जो 7 ऋषि थे उनके ही समकक्ष के एक वो ऋषि हुए हैं, बहुत ही महान ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क। बृहदारण्यक उपनिषद में वे लिखते हैं, वे कहते हैं, उनकी कहानी इस प्रकार है कि उन्होंने 2 शादियां की थी। एक पत्नी का नाम था मैत्रेयी और दूसरे का नाम था कात्यायनी। मैत्रेयी थोड़ा सा आध्यात्मिक विचारों वाली थी, स्पिरिचुअल नेचर की थी, और कात्यायनी थोड़ा सांसारिक नेचर की थी। जब याज्ञवल्क 55 ईयर्स ओल्ड हो गए तो उनको संन्यास लेने का सूझा। उन्होंने सोचा कि नाउ आई हैव टू बी बिकम मॉन्क। उन्होंने कहा, अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि हमने ये जो कुछ हमारा धन है, ये धन अब हम तुम दोनों में बांट देते हैं, और तुम दोनों लोग अब इस इतना धन हमने कमाया हुआ है कि तुम दोनों लोग इसमें बहुत ऐश का जीवन जी लोगे, और अब हम मांग होना चाहते हैं, सन्यासी होना चाहते हैं। कात्यायनी जो थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक नेचर की थी, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, धन ले लेते हैं जो है। मैत्रेयी ने उनसे पूछा कि आखिर आप क्यों छोड़ रहे हैं? आदमी पत्नी के लिए ही तो कमाता है, और पत्नी सबसे महत्वपूर्ण होती है या पति महत्वपूर्ण होता है? वो आपके पास है, आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं? और इतना धन आपके पास है, और मैं बताऊं आपके उनके पास अथाह संपदा थी। ये तो खैर एक बहुत बड़ी कहानी है, उस पर अब हमें नहीं जाना है। अथाह संपदा थी, आप धन भी छोड़ रहे हैं। इसी के लिए आदमी जीवन जीता है, पत्नी के लिए, पति के लिए और धन के लिए, और आप ये सब कुछ त्याग रहे हैं, तो इसका मतलब कि इससे भी कोई महत्वपूर्ण चीज होगी, उसी के लिए आप त्याग रहे होंगे। तो वो कौन सी चीज है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ। मैत्रेयी ने कहा, उस अपने आप को जानने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा, अभी तक हम बाहर की तो सब चीजें जान लिए, और हम लोग यही तो करते हैं कि बाहर की चीजें हम इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ जानना चाहते हैं। सन पे क्या हो रहा है, मून पे क्या हो रहा है, हम सब कुछ जानना चाहते हैं, और वास्तव में जानना कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन क्या हम अपने आप को जानते हैं? योग यही विद्या का नाम है कि आप पहले अपने आप को जानो, क्योंकि आप ही तो अपने अपने संसार के मालिक आप हो। आपका एक खुद का संसार है, और आप ये संसार हो, और आप ही के संसार में आपकी फैमिली है, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपका धन है, आपका मान है, आपका पद है, आपका प्रतिष्ठा है। और आप उसको ही नहीं जानते हो, तो फिर आपको बाहर की चीजों को बहुत जान के आप करोगे क्या? योग इसी विद्या का नाम है कि सबसे पहले आप अपने आप को जानो, और यदि आप अपने आप को जान लेते हो तो बाहर की चीजें आपकी अपने आप जनाई हुई हो जाती हैं, और जो नहीं भी जानी हुई हो जाती हैं वो आप जान लेते हो। और ये भी सच है कि आप हर चीज के मास्टर हो भी नहीं सकते हो। तो अपने आप को जानना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। अब हम हैं कौन? अगर हम इस पर विचार करें तो जरा आप देखें, एक विचार करिए कि अगर हम पूछें कि आप कौन हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप यही कहेंगे कि आपका अपना नाम बता देंगे, अपना शरीर दिखा देंगे कि हम ये हैं। लेकिन आपके पिता, आपके माता अगर दूसरा नाम दिए होते, तब फिर आप क्या कहते? फिर आप उस नाम का बताते। आपके कितने भी नाम दिए जा सकते थे। तो नाम तो हमारा जो है परिचय नहीं हुआ ना, ना हमारी शरीर परिचय हुई, क्योंकि इस तरह के शरीर के और लोग भी पाए जा सकते हैं। तो यह हमारा मूल परिचय नहीं है। हमारा मूल परिचय क्या है, हम उस पर आते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखें तो आप देखें कि आपका ये शरीर कितने तत्वों का बना है, किन किन चीजों का बना है। योर बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, एंड दीज 5 एलिमेंट्स आर इनर्ट। यू सी, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। दीज 5 थिंग्स आर इनर्ट, दे आर नेचर, एंड दे हैव नो नॉलेज। तो अगर हम ये कहें कि आप मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश इनके बने हुए हो, तो क्या आप ये कहोगे कि हाँ मिट्टी पानी के बने हुए हैं? क्योंकि मिट्टी पानी में तो नॉलेज होता ही नहीं है, मिट्टी पानी में तो अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी आप तालाब में हो और तालाब बहुत गहरा है, और आप उसमें ये कहो कि हे तालाब देव हमें बचा दो, तो क्या वो बचाएगा? अग्नि में आप कूद जाओ, कहोगे कि हे अग्नि देव हमें बचा लो, तो क्या आपको बचा देगी? क्योंकि उसमें तो समझ है ही नहीं है, उसमें तो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं है। बट वी हैव अंडरस्टैंडिंग. It means that we are not only made of these 5 elements, there is some other element also that is called soul or consciousness in our yoga philosophy. And not only in yoga philosophy, in our Indian philosophies also, it is told that we are consciousness also. और उस consciousness का main characteristic है knowledge, understanding. अब देखें कि we are
combination of these inert and consciousness. और हम जो काम करते हैं आप अपने काम को देखें, 100% अगर आप अपने काम को देखें तो वी ऑलवेज वर्क ओनली फॉर इनर्ट थिंग्स. धन इनर्ट है, बीबी बच्चे सब इनर्ट हैं, घर संपत्ति जो कुछ भी है सब इनर्ट हैं. हम केवल इसी के लिए ही कार्य करते हैं. सो इम्बैलेंस नहीं होगा. अगर हम 50% मान लो 1 मिनट के लिए हम कॉन्शियसनेस हैं और 50% पांचों एलिमेंट हुए और हम वी आर वर्किंग ओनली फॉर द 5 एलिमेंट्स एंड वी आर नॉट वर्किंग फॉर आवर दिस इनर एलिमेंट, then there will be imbalance in our personality and that imbalance creates stress in your life. और फिर उसमें आपको स्ट्रेस से कोई रोक ही नहीं सकता है क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं. तो जो दूसरा पक्ष है जीवन का, the other aspect of our life is our consciousness. और वो कॉन्शियसनेस, उसी को समझने को यानी अपने आप को समझने को ही हम योग कहते हैं. अब आप ये कहेंगे कि हम उसको कॉन्शियसनेस को समझें ही क्यों? तो मैंने तो आपको बता दिया कि अगर आप अपने जीवन में बैलेंस चाहते हैं, इफ यू वांट बैलेंस इन योर लाइफ, इक्विलिब्रियम इन योर लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, इफ यू वांट एंजाइटी फ्री लाइफ, इफ यू वांट अ हेल्दी लाइफ, then you have to know itself. Without knowing it, there is no any other way to get all these positive things. So you have to know it. अब आप ये देखें कि उसके एस्पेक्ट पर जब हम देखते हैं कि जिसमें हमारा माइंड भी आता है, जो इंटरनल की जिसकी हम बात करें उसमें हमारा माइंड भी आता है, उसमें कितनी पोटेंशियल है. हमारे और पशु में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड एन एनिमल? द ओनली डिफरेंस इज दैट हमारे अंदर चिंतन की शक्ति है, मनन की शक्ति है और वाणी की शक्ति है. आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट and we can write down my expressions, but animals cannot do it. और हमारी उस कैरेक्टरिस्टिक को तो आप 1 मिनट के लिए साइड लाइन कर दो. जो मेन हमारी कैरेक्टरिस्टिक है कि हम सोच सकते हैं, हम चिंतन कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हमारे अंदर विवेक है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. इनर्ट चीजों में यह पॉसिबिलिटी नहीं होती है. मिट्टी न तो मिट्टी को जान सकती है, न तो अग्नि को जान सकती है, न तो वायु को जान सकती है और न ही वो तुम्हें जान सकती है. लेकिन हम अपने आप को भी जान सकते हैं और मिट्टी, अग्नि, वायु आदि को भी जान सकते हैं. और ये कैसे जानते हैं? अपने मन की सहायता से, मनन की शक्ति से. आप देखें कि मनुष्य की मेन जो पावर है, एनर्जी है, वह मेंटल एनर्जी ही है. फिजिकल एनर्जी इज नॉट आवर मेन एनर्जी. फिजिकल एनर्जी ठीक है, वो तो होनी चाहिए, बट फिजिकल एनर्जी में आप देखें तो आप पशुओं से हार जाएंगे. लेकिन आपका इंटेलेक्ट है और आपका माइंड है, उसमें आप जो है सुपर हैं. इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे बढ़कर के और कोई नहीं है. उस मेंटल एनर्जी को जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, अगर आप उसको 1 मिनट के लिए सिर्फ आप 1 दिन अपने माइंड के थॉट्स को देखें, उस समय जब आप सो करके उठते हैं, ठीक उसके बाद से लेकर के जब आप सोने बिस्तर पर जाते हैं, आप अपने पूरे थॉट्स को लिख डालें और फिर दूसरे दिन सुबह उठ करके उन थॉट्स को पढ़ लें आप, तो आप ये देखेंगे कि 99.99% ऑफ योर थॉट्स आर अननेसेसरली मीनिंगलेस. एंड दिस इज आवर मेन एनर्जी एंड वी आर वेस्टिंग दिस होल एनर्जी. तो सोचें कि फिर हम मनुष्य कैसे हो सकते हैं? हम तो पशु के ही नजदीक होंगे ना. तो अपनी सारी एनर्जी को तो हम वेस्ट कर रहे हैं. और वेस्ट किधर कर रहे हैं? रिएक्शन में, एक्शन में. तो इसको तो खैर हम देखेंगे ही. पहले हम ये सोच लें कि हम देखें कि कितनी हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं. तो हम किस अर्थ पे ये कह सकते हैं कि हम मनुष्य हैं? केवल योगा ही एक ऐसी टेक्निक है जो आपको बताती है कि आप अपने आप को समझ लें तो आप वास्तव में तब मनुष्य हैं. अन्यथा आप पशु के समान हैं. पशु हैं या थोड़ा बहुत पशु के समान हैं, ज्यादा पशु के समान हैं और थोड़ा बहुत मनुष्य के समान हैं. दिस इज ओनली योगा विच टेल्स यू हाउ टू नो योरसेल्फ, हाउ टू नो योर पोटेंशियल. और इस पोटेंशियल को बताने का कार्य केवल योग करता है. वी हैव इन्फिनिट पोटेंशियल. अब आप देखिए कि उस मन का साथ हम करते क्या है. जो हमारा मन है 99.99 हम जो है बिना मतलब यूज करते हैं. वो कैसे यूज करते हैं? आप देखें कि वो आप पास्ट और फ्यूचर में ही यूज करते हैं. उदाहरण के रूप में लें, फॉर एग्जाम्पल, कल कोई एक घटना घटी जिसमें हमारी किसी से झगड़ा हो गई. 1 घंटे की झगड़ा हुई, मैंने उसको मारा, उसने मुझे मारा.
अब झगड़ा समाप्त हो गई, पुलिस आ गई, उसने झगड़ा समाप्त कर दिया, समझौता कर दिया। 1 घंटे के बाद अब आप देखें कि उस झगड़ा तो समाप्त हो गई वहीं पर, और उस आदमी ने मुझसे क्षमा मांग ली, हमने उससे क्षमा मांग ली, वो भी समाप्त हो गई। लेकिन उसका रिएक्शन आपके पूरे जीवन भर रहेगा। आप अपने मस्तिष्क में, मन में जीवन भर उससे लड़ते रहेंगे। उसने ऐसे क्यों किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, हम ऐसा करते, हम वैसा करते। वी ऑलवेज फाइट विद इन आवर माइंड। और आप सोचें कि दिस माइंड विच कैन क्रिएट्स हैवक, which can create a very great things in our life, and we are wasting in only just a petty reactions. और ये रिएक्शन में आप देखें कि इस रिएक्शन में हम जब ये रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है उसका, जैसे ही उस घटना की याद आई आपका तुरंत हार्ट बीट बढ़ जाएगा। आपका हार्ट बीट बढ़ा तब फिर क्या होगा, फिर आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा। हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट बढ़ा तो क्या होगा, फिर आपका जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वह काम करना शुरू कर देगा, और वो क्या करेगा कि तुरंत ही आपके हाइपोथैलेमस को एक एक इंस्ट्रक्शन देगा कि वो पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन दे, और पिट्यूटरी इंस्ट्रक्शन देगी एड्रेनलिन को, और एड्रेनलिन जो है वह स्ट्रेस हार्मोन निकालना शुरू कर देगी, और वह स्ट्रेस हार्मोन आपके ब्लड में आ जाएगा। और जब आपके वह ब्लड में आ गया तो फिर क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए, तो जैसे कभी इमरजेंसी में प्रकृति ने, नेचर ने, दीज सिस्टम्स हैज गिवन अस टू डील विद एनी इमरजेंसी, नॉट एट एवरी टाइम, बट इफ यू प्रोलॉन्ग दिस, जैसे जैसे कहीं आप जा रहे हो, रात में जा रहे हैं और अचानक कोई आवाज आई और आप डर गए, उस स्थिति में एड्रेनलिन जो है निकल आए, कॉर्टिजोल निकल आए, या और कुछ स्ट्रेस हार्मोन निकल आए, तो ठीक है, क्योंकि वो आपको एक्टिव कर देते हैं और आपको अलर्ट कर देते हैं, आपको बचने के लिए तैयार कर देते हैं। अगर यही एड्रेनलिन और यही कॉर्टिजोल दिन भर आपके निकलता रहे तब क्या होगा, फिर वह आपके हार्ट को, आपके जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको, आपके न्यूरॉन सिस्टम है उसको, आपके ब्रेन को, इन सबको डैमेज करना शुरू कर देता है। और इसी को ही हम स्ट्रेस कहते हैं कि यह स्ट्रेस हमारे पूरे बॉडी को वियर एंड टेयर करना शुरू कर देता है, और फिर हम स्ट्रेस की जगह पर डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। वास्तव में स्ट्रेस तो सबको चलता है और होना भी चाहिए, और हमारे यहाँ नेचर ने हमको इस तरह से बना भी रखा है कि हम वो स्ट्रेस से डील कर सके। बट जब वो स्ट्रेस डिस्ट्रेस हो जाता है तब वह दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू आवर बॉडी, to our mind, to our relations, to our father, with our mother, and every our relation will get spoiled. We will get more irritated, we will get more in fear, anger, and all these things will increase automatically. इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब आप देखें कि योग जो है वह क्या करता है कि आपको बताता है कि कैसे आप इसको मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इम्यूनिटी देख लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। अगर आप एनाटॉमी पढ़े होंगे तो आप देखें, इम्यूनिटी हमारे शरीर की एक ऐसी क्षमता है कि जो कोई भी फॉरेन चीजें हमारे अंदर इन्वाइटिंग करती हैं तो उनसे वह लड़ता है, और उस चीज को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। एनाटॉमी में है कि उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और आप ये देखें कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा, और प्लाज्मा के साथ ही ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। वे ब्लड कॉर्पसल्स जो हैं वे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स के होते हैं। प्लेटलेट्स भी उसी में आता है। डब्ल्यूबीसी इज अ फाइटिंग एलिमेंट इन आवर बॉडी। कोई भी एनी पैथोजन विच अटैक्स अस, it fights with it, and it fights with it T cells and B cells. So this is called, you say, this our immunity. Immunity में हमारा जो WC है वही एंटीटॉक्सिन्स बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, और उस इम्यूनिटी को प्रकृति ने आपको दिया है। अब उस इम्यूनिटी को बूस्ट करने का क्या तरीका है? इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सिर्फ 4 चीजें हैं। एक तो आपका डाइट ठीक होना चाहिए, दूसरा आप कोई ना कोई एक्सरसाइज रोज करें, उसमें योगा भी ले सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा आपको नींद पर्याप्त लेनी है, और चौथा आपका मन बहुत शांत होना चाहिए।
अब केवल डाइट वाले को छोड़ दो तो बाकी 3 चीजें सब योग से ही ली जाती हैं। अगर आप योग का अभ्यास करें तो ये 3 चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप डाइट को पूरी तरह से निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप अच्छी डाइट ना लें, प्रोटीनियस डाइट लें और जितने सारी जो कैलोरीज होती हैं उस हिसाब से डाइट लें। लेकिन एक कोई गरीब आदमी है वह नहीं ले सकता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगा। उसकी इम्यूनिटी मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि उसमें अपने उसका जो मन है वह उस तरह से भटक नहीं रहा है जिस तरह से हमारा भटक रहा है, और इसलिए उसकी इम्यूनिटी ज्यादा बेटर होती है। ये 4 चीजें जो इम्यूनिटी के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, दीज कैन बी करेक्टेड ओनली बाय द प्रैक्टिस ऑफ योगा। इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो आपके मन को शांत कर सकती है? क्या आप कोई दवा खरीद सकते हैं उसके लिए? कोई दवा ही नहीं है मन को शांत करने की। फियर को दूर करने की कोई दवा ही नहीं है, एंजाइटी को दूर करने की कोई दवा ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत साइकियाट्रिस्ट लोग देते हैं वो आपके ब्रेन को नंब कर देता है, आपके सोचने की शक्ति को छीन कर देता है, और सोचने की शक्ति को छीन कर देता है तो वह आपको और नुकसान कर रहा है। इनडायरेक्टली इट इज गिविंग यू हार्म। लेकिन अब क्या करें, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई दूसरा संसार में विज्ञान ही नहीं है। अपने मन को ठीक करने का इस संसार में आज तक कोई विज्ञान ही नहीं बना है एक्सेप्ट योग। इफ यू डू योग देन डेफिनेटली ऑल दीज इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स विल ऑटोमेटिकली रिजॉल्व। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब हम स्ट्रेस पे आते हैं। स्ट्रेस पर हमने थोड़ा बहुत चर्चा कर ली है। स्ट्रेस बेसिकली जो आपका बॉडी है और माइंड है, बाहर की जो भी चीजें हैं, एनीथिंग्स आउटर साइड, जब वह आपसे कोई डिमांड करती हैं, डिमांड का मतलब आपसे वे आपके लिए कुछ एडजस्टमेंट करने की डिमांड करती हैं या आपसे रिस्पॉन्स करने की डिमांड करती हैं, और उसमें आपका जो रिएक्शन होता है उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस यह केवल और केवल इस संसार में और कोई विद्या ही नहीं है जो योग के अलावा आपको दे सके। सिर्फ योग ही एक ऐसी चीज है कि जो आपको इस पर पूरा का पूरा 100% ठीक कर सकता है। और आप जरा देख भी लें, जस्ट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ इन दिस वर्ल्ड, यू सी द होल वर्ल्ड। इस संसार में आप कौन सी चीज है कि जिसको आप बदल सकते हैं? क्या आप अपनी पत्नी को बदल सकते हैं? बदलने का मतलब कि क्या उसके आप माइंड को बदल सकते हैं, उसकी हैबिट्स को बदल सकते हैं? यू कैन नॉट चेंज एनीवन फुल्ली। ना आप सूरज को चेंज कर सकते हैं, ना आप चांद को चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को फुली चेंज ही नहीं कर सकते हैं। और आप विचार करके देखें कि होल लाइफ हम चीजों को ही चेंज करने का प्रयास करते रहते हैं। जो हम कर नहीं सकते हैं उसको हम होल लाइफ करते हैं। और हम क्या चेंज कर सकते हैं? वी कैन चेंज आवर ओन माइंड फुल्ली एंड कंप्लीटली 360 डिग्री। Unfortunately we do not think about it, और इसीलिए in the last we think that our life has become a waste। जिसको हम चेंज कर सकते थे उस पर हमने सोचा ही नहीं, और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते थे हमने पूरा जीवन उसी पे लगा दिया। हमने पूरा जीवन लगा दिया कि मेरी बीवी मेरे हिसाब से काम करनी चाहिए, मेरा पति मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, मेरे लोग से काम करने चाहिए, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से काम करने चाहिए, मेरा घर इस हिसाब से बनना चाहिए। होल लाइफ we contribute for this, and this you see ultimately when you think that मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। Only you can change your mind and fully, and remember only one thing, if you can change your mind only 10%, you can do the greatest thing of this world. Only 10%, not 100%. And those who have changed more than 10, like Buddha, like Gandhi, like Krishna, like Rama, like Christ, and you have seen them, उन्होंने कितना कर लिया। और कोई भी in this whole world, if you see in this whole world, those who have done a very great work, they have definitely taken a help of yoga, or the type of yoga like this, like meditation, like yoga, like prayer, all these types of things. So yoga is the only science which gives you how to deal with your stress. And you see, not only with stress, you can deal with every problem of this world.
कोई ऐसी समस्या है ही नहीं है कि जिसको आप सॉल्व ना कर दें। भय को आप सॉल्व कर लेंगे, भय आपके नजदीक ही नहीं आएगा, इनसिक्योरिटी आपके नजदीक ही नहीं आएगी। इवन इन स्पाइट दैट यू हैव नथिंग, आप सोचें कि जितने महापुरुष हुए हैं उनके उनके जेब में एक कौड़ी भी नहीं रहती थी, लेकिन लोग उनके पास आते थे। और एक कहानी बताता हूँ, एक 2 मिनट की कहानी बताता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस थोड़ा सा शुरू करेंगे कि इस योग का हमने बता तो दिया आपको, इसका प्रैक्टिस कैसे होता है। एक बार भगवान बुद्ध कहीं ठहरे हुए थे 1 महीने के लिए। वो जेतवनाराम का एक गार्डन था, वहाँ ठहरे हुए थे, और वहाँ पर एक महिला आई, और वह महिला क्या 20-22 साल की लड़की थी। वो आई और उसने देखा महात्मा बुद्ध से तो बड़े प्रभावित हुई, उनके प्रवचन को सुन करके इतना प्रभावित हुई कि उसने कहा कि इस जगह को मैं ले लूंगी, जिसकी भी होगी उस जगह को मैं ले लूंगी, और ले करके मैं उस जगह पर अपना नाम लिखवाऊंगी और महात्मा बुद्ध को यहीं पर अब टिकाऊंगी, हमेशा वो यहीं रहेंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध कहाँ टिकने वाले चीज है, वो तो हमेशा घूमते रहते थे। महात्मा बुद्ध से उसने बात की तो महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो बेटा, मैं यहाँ तो मैं कहीं पर भी एक जगह नहीं टिकता हूँ, केवल वर्षावास में मैं टिकता हूँ, और वो भी मेरा फिक्स्ड रहता है, मेरा फिक्स नहीं रहता है, मैं कहीं पर भी टिक सकता हूँ और एक जगह नहीं टिकता हूँ, बाकी हम 1-2 दिन से जगह कहीं ज्यादा नहीं टिकते। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ आज टिक ही गए हो, इसीलिए इस जगह को मैं अब खरीदूंगी। वह जो है पूछना शुरू किया कि जगह किसकी है, तो फॉर्चुनेटली वह जगह जो है वहाँ के राजा के बेटे की थी, राजकुमार की थी। वह उस राजकुमार के पास गई और उसने कहा कि यह जगह मुझे दे दो, और वो राजकुमार को वह जगह इतनी प्रिय थी कि उसने कहा कि मैं इसे दे ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि देने का। फिर उसने कहा कि मैं तो इसको लेकर के ही रहूंगी, ऐसा भी संभव नहीं है, मैं इसको लेकर के रहूंगी। और उसने कॉन्स्टेंटली उनको इतना प्रेशर किया कि अल्टीमेटली राजकुमार को ये कहना पड़ा, उससे बचने के लिए कहना पड़ा कि इस पूरे उतनी जगह को, जितनी जगह में तुम असरफियों से, मोतियों से जितनी जगह को तुम पाट दोगी, उतनी जगह तुम्हारी होगी, बाकी जगह मेरी होगी। उसने कहा ठीक है, डन। अपने पिता के पास गई, उसके पिता उस समय के बहुत धनी थे। पिता से उसने बोला कि जो है मुझे इतना ये चीजें चाहिए। तो उसने कहा क्यों चाहिए? उन्होंने कहा बुद्ध के लिए चाहिए। उन्होंने कहा ले जा बेटी। और उसने जा करके उस पूरी जगह पर धन को बिछा दिया। तो कहने का हमारे अभिप्राय ये है कि इफ अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी सारी चीजें आ जाती हैं, सिर्फ आपके पास शांति है और आपका मन का संतुलन है तो सारी चीजें आ जाती हैं। और अगर आपके पास मन का संतुलन नहीं है, बहुत धन है, तो मन की शांति नहीं आ पाती है, वह खरीदी नहीं जा सकती है। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भिखारी बन जाएं और योगी बन जाएं, क्योंकि वो तो संसार में एक ही 2-4 लोग हो पाते हैं, सब बन ही नहीं सकते हैं। लेकिन कम से कम इतना हमारे अंदर बैलेंस तो हो ही जाए कि हम अपने मन को पर इतना नियंत्रण कर सकें कि हम अपने मन की 10%, 20%, 25% तो अपने हिसाब से यूज कर सकें। वह बिना मतलब के जो रिएक्शन और एक्शन में हम यूज करते हैं और अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ाते रहते हैं, उससे तो बच सकें। हमारे रिलेशनशिप तो अच्छे हों, हमारी चीज़ें तो व्यवस्थित हो जाएं, कम से कम 10% तो हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें। तो यह इतना तो हमें जरूर करना चाहिए, और दिस इज वाई वी ऑल शुड लर्न योगा। नाउ आई विल टेल यू सम एक्सरसाइजेस ऑफ योगा, हाउ टू डू इट and how to get a quick relaxation, instant relaxation by practicing this. First lesson of yoga is that you have to sit erect. Your spine, neck and head should be erect. Normally we always sit with bent spine. अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी पे या तो बैक से जो है टेढ़े होंगे, और या आप कुर्सी पर बैठे हैं और कंप्यूटर का काम कर रहे हैं तो ऐसे करके काम करें। आपका नेक टेढ़ा होगा, आपकी बैक टेढ़ी होगी। और अगर आप फिजियोलॉजी और एनाटॉमी थोड़ा भी जानते हैं तो हमारा ब्रेन और स्पाइन, दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इटसेल्फ। और इसका काम क्या होता है? ब्रेन ही तो सारे अंगों को एनर्जी भेजता है। जो लाइफ फोर्स है वह ब्रेन भेजता है, बाकी जो श्वास है वह हमारा हार्ट पंप करता है। लाइफ फोर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट।
लाइफ फोर्स जो है वह ब्रेन स्पाइन को भेजता है और स्पाइन नर्व्स के थ्रू सारे अंगों को, जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, बाहर के ऑर्गन्स हैं, सबको नर्व से ही भेजता है और वह स्पाइन से भेजता है। अब स्पाइन एक हालो पाइप के रूप में है। अगर आप पाइप को कहीं टेढ़ा कर दो तो पानी का प्रेशर जाएगा कैसे? आगे की ओर जाएगा ही नहीं। तो उसी स्थिति में आपके वे सारे अंग वीक हो जाएंगे जहां पर आपका लाइफ फोर्स पहुंच ही नहीं रहा है। तो इसलिए हमें हमेशा बिल्कुल सीधा होकर के और बंद करके बैठना चाहिए। जो पहला लेसन है, एंड यू कैन डू इट इन योर ऑफिस, एट योर होम, एनीवेयर। क्योंकि इसमें हम बहुत आसनों के विषय में बता नहीं सकते और ऐसा ये सेशन भी नहीं है। हम आपको बैठे बैठे ही है आप क्या कर लें, कैसे अपने आप को रिलैक्स कर लें। 5 मिनट में आप जिस तरह से आप नींद जब प्राप्त करते हैं, मान लो आप 10 मिनट का स्नैप लेते हैं और उसमें आप जितनी शांति प्राप्त करते हैं उससे ज्यादा शांति आप इसमें प्राप्त कर लें, तो उसमें क्या बुराई है? आप तुरंत आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। दूसरा, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए जो दूसरी चीज है वो ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग प्लेज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल फॉर आवर इम्यूनिटी सिस्टम एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। होता ये है, यद्यपि ब्रीदिंग इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट देन द माइंड, बट you cannot catch your mind directly. It is so subtle that you cannot catch your mind. आप अभी बैठे मेडिटेशन के लिए बैठे तो your mind will be roaming. You cannot catch it. It is not so simple to catch the mind. Mahatma Buddha took 6 years, complete 6 years. And before the 6 years, when he was at his home, he was in tremendous, he has a tremendous detachment. Then he left the home and then he win over his mind after 6 years of practice. और हम लोग सोचते हैं कि 1 या 2 दिन का हम मेडिटेशन किया और फिर बोलना शुरू करते हैं, अरे भाई मन को रिलैक्स ही नहीं हो रहा है, ऐसे थोड़ी इतना जल्दी रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि इट इज सो सटल। उस सटल चीज को पकड़ने के लिए फर्स्ट यू हैव टू होल्ड द ग्रॉस थिंग। ग्रॉस थिंग इज योर बॉडी। तो उसमें आप आसन कर लो। व्हेन यू डू आसनास, व्हेन यू डू पोस्चर्स, आपका बॉडी जो है वह बहुत रिलैक्स हो जाएगा। और जो भी आपके स्ट्रेस हार्मोन मान लो निकले भी है, किसी वजह से स्ट्रेस से आपके जो स्ट्रेस हार्मोन निकले भी है, वे if you do postures, they will be released out through your stool and through your urine. They will not remain in the blood, so they cannot damage you much, they cannot hurt you much. So this is why asanas are very important practice, so you should do it. But this time I cannot tell you this. And the second thing is, when you start practicing asanas with a perfect guru, आसना को हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो। फिजिकल एक्सरसाइज, आसना इज नॉट फिजिकल एक्सरसाइज, आसना इज अ ब्लेंड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज इन फैक्ट। और चूंकि ग्रास में हम अपने पहले शरीर को पकड़ सकते हैं, तो शरीर को पकड़ करके उस पर फोकस करो। तो इन आसना यू हैव टू फोकस योर अटेंशन whatever you are doing. In fact, अगर आप बहुत फिलोसफिकल टर्म में ना जाएं, अगर आप एक प्रैक्टिकल टर्म में जाएं, तो योग की परिभाषा यह है कि आप शरीर और मन दोनों को जोड़ दें। अब आप ध्यान से देखें कि आप जो कुछ करते हैं तो क्या आपका मन वहां रहता है? मोस्टली नहीं रहता है, मन घूमता रहता है, और इसीलिए वह आसन नहीं होता है। आप जिम जाएं या कुछ भी करें तो आपका मन घूम रहा है, मन भटक रहा है। तो आसन कैसे हुआ? एंड इंटीग्रेशन ऑफ बोथ माइंड एंड बॉडी इज आसन। तो उसमें आपको मदद करेगा। आपने थोड़ा सा बॉडी से मन को पकड़ना शुरू किया, बॉडी को स्टेबल किया। बॉडी तो हमेशा हिलती डुलती रहती है, वो रेस्टलेस रहती है, क्योंकि उसमें स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन आपको उछलने कूदने के लिए, रेस्टलेस होने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे चूहा उछलता कूदता रहता है, वैसे हम भी उछलते कूदते रहते हैं, वो आपको मजबूर कर देता है। तो आप आसन से उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, उसको सबसाइड कर सकते हैं। देन यू हैव टू प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नाउ वी विल डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वी ऑल कैन डू इट। फर्स्ट यू हैव टू सिट एरेक्ट एज आई टोल्ड यू, एंड देन द वेरी important breathing exercise which we can do everywhere. वो exercise है कि you have to know how to take breathing. How to take yogic breathing or real breathing. Normally we don't take yogic
we take only superficial breathing. You see superficial breathing क्या है? बस श्वास आ रही है और जा रही है. और होता क्या है कि हमारा एनाटॉमी पढ़े तो उसमें देखें कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी जो है, लंग्स की कैपेसिटी है लगभग 4.5 से 5 लीटर इनहेल करने की और 4.5 से 5 लीटर एक्सहेल करने की. इतनी कैपेसिटी है और हम लेते कितना है? अगर आप नापो, मेजरमेंट करो तो आप आधा लीटर और 1 लीटर से ज्यादा नहीं लेते हो. यानी कि यू यूज ओनली 1/5 ऑफ योर लंग्स and 4/5 of your lungs is unused. और जब वो अनयूज रहेगी और उसका काम क्या है? उसका काम है कि आपके ब्लड को मोर ऑक्सीजनेट करना, और ब्लड जब मोर ऑक्सीजनेट होगा तभी WBC अच्छा बनेगा, तभी जो एंटीटॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज हैं वो अच्छा बनेंगे. और आप उस तरह से ब्रीदिंग ही नहीं लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा. तो हाउ टू टेक दिस ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग? फर्स्ट you have to sit erect. Then first you have to take only chest breathing. Inhale deep, long and slow, and only inflate your chest. But you have to be very conscious that now your chest is getting inflated. Your mind should not roam here and there. And then you release this breath and deflate your chest. Do it 5 times. Inhale deep, long, and slow, and only inflate your chest. Think that breath is not going to your abdomen. Only chest is inflating, and then deflate it gradually and slowly. Close your eyes and do it with a full attention mind, full focused mind. And then you will feel just now that your brain has got a lot of peace, relaxation. And then after it, now you have to leave your chest and you have just to inflate your abdomen. This is called abdominal breathing. You inhale deep and slow and feel that chest is not used at all, only abdomen is getting inflated. And do it with a consciousness, means with full awareness. Your mind should be here in mind. Please mute your voice. Anyone has, I think, unmuted it. So please mute it. Your sound is coming to me. My sound cannot go you then. So you do this 5 times with full awareness. And then do it 5 times only. So one is called chest breathing and the another is called abdominal breathing. Or abdominal breathing may now you can question that there is no any way to go the breath to the abdomen. It only goes through the arteries and veins. In fact होता क्या है कि हमारा जो चेस्ट कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी है इसके बीच में डायफ्राम होता है. डायफ्राम कॉन्वेक्स होता है, इस तरह से होता है. तो जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो वह अपने नॉर्मल शेप में रहता है, कॉन्वेक्स रहता है. जब आप ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद इन करते हैं तो वो ज्यादा जगह लेता है, आपकी लंग्स फूल जाती हैं, तो आपका जो डायफ्राम है वह नीचे की ओर आ जाता है, या तो समतल हो जाता है या नीचे की ओर आ जाता है. जब वह नीचे की ओर आता है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो एब्डोमिनल लंगों पर प्रेशर पड़ता है, फूल जाते हैं. तो आप ये सोच रहे हैं कि एब्डोमिन में आ गई है. वास्तव में देयर इज नो एनी वे to keep the breath in your abdomen. So this is the science of the breath. So after this, you have to do yogic breathing. This was just and abdominal breathing. Now you have to do yogic breathing. How to do yogic breathing? First, you have to inhale deep, long, and slow, and think that your abdomen is getting pressed, inflated, and then the breath is coming to your chest. So first, you have to inflate your abdomen. Then you have to inflate your chest. And when you start exhaling, first you have to exhale. You have to relax your chest and then abdomen. जैसे कोई ग्लास होता है, जब आप उसमें पानी भरते हैं तो सबसे पहले नीचे भरता है फिर ऊपर भरता है.
उसी तरह से आपको इसको भरना है। और जब आप खाली करते हैं तो पहले ऊपर से खाली होता है, फिर नीचे से खाली होता है। सेम उसी तरह से एक्सहेलेशन में करना है आपको। तो यू डू इट 5 times with full awareness. Mind should be here. Always remember, mind should be here. You have not to force your body, but you have to force your mind to remain with you. If it is not with you, it is not pranayam. It is merely a physical breathing exercise. And breathing exercise में तो शेर वगैरह भी दौड़ते भागते हैं तो हो जाती है, उनकी भी हो जाती है. So that will not affect, that cannot affect your emotions, that cannot affect your mind, that cannot affect your stress. So if you take like this, then all these things will. So after this, now we will do relaxation for 5 to 10 minutes. So please, if you have the place to lie down here, then you can lie down. Otherwise, you can sit on the chair or sofa with your spine, neck and head erect. Now, I will instruct you and you have to do the things. Close your eyes. Relax your face. Relax your eyebrows. Relax your forehead. Relax your cheeks and chin. Relax your neck. Relax your arms from shoulders to fingers. Relax your back. Relax it completely. Now relax your spine. All the vertebrae of your spine should be relaxed. Relax your chest. Relax your abdomen. Relax your legs. You have relaxed your body completely. Leave your body in this relaxed state. And again think that I am not body. Because body is made of 5 elements, but I am not made of these 5 elements. I am not body. But this body is mine. Just as you built a home and you live inside the home, it does not mean that you are home. You are not home. This home is yours, but you are not home. In the same way, we live inside this body, but we are not body. We are consciousness. And now we have to come to this consciousness. The whole time I am always outer world. So we have to now to come to our own self. In the deep sleep, we go to ourself. We forget everything because in the deep sleep, our mind rests completely. In the same way, when you meditation, you have to make your mind is still completely stopped. But in the deep sleep, it is unconsciously in the meditation, you keep your mind stopped consciously. But mind cannot be stopped forcefully.
it has some scientific techniques to make your mind relax fully. Now, please visualize that you are leaving your body for 5 minutes and going to the sky. You have reached the sky. You stay on the sky for a few minutes and then watch your body from there. Your body is so small that it cannot be observed through these eyes. So visualize that you are observing your body from your third eye. You first locate Earth planet, then locate the country in which your body is, then locate the city, then locate area, then locate home, then locate the room, then locate your body. Now you have located your body. Just you see your body from there. First time you are observing your own body. Before this, you were observing the whole things from the body, but now today you are observing your own body. Think your body is taking a deep rest. Remember, you have not to sleep, you have not to be unaware. Only listen the instruction carefully. What is happening in your body? The breath is coming in and going out. Just observe the coming and going breath. Only observe the breath coming and going. Remember, you are not breath also. This breath is your, but you are not breath. Observe your every breath consciously. Your mind may roam here and there. Let it roam. Don't try to force it to come to you, but only try to be aware on your breath. अगर आप मन को जबरदस्ती रोकना चाहेंगे तो और भागेगा, इसलिए मन से तो अपना ध्यान ही हटा दें। केवल अपनी अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास को ऑब्जर्व करते रहें। Only observe your breath. Leave everything aside for a few minutes, only for 1 minute. And you will see miraculous result. Your body and your mind will be in complete peace and rest. And this complete peace and rest will boost your immunity, lessen your stress. Now you have to make your breath a bit deep. Instruct your body to take a deep, long and slow breath. As deep, long and slow as possible comfortably. But only remember, it should be comfortable. It should not be very forceful that you become out of breath. You have not to become out of breath. Only 5 deep and long breaths, and with full awareness. Always remember,
If you are not aware, then you are doing only exercise. If your body is somewhere else, mind is somewhere else, then it is not a yoga. Yoga means combination of body and mind. So try to be fully focused and then make your breath normal and ask slowly and slowly instruct yourself to come to your body. Now come inside to your body and then instruct your body parts to get awakened. But again think that I am not body, I am not this whole. I wear cloth, it does not mean that I am cloth. So this body is made of 5 elements. I have to take care of these 5 elements also. I have to take care of my home also, and I have to take care of myself also. So from today onwards, I will take care of myself also. So now instruct your body to sit down or open your eyes. Now, if you have any questions, we can please ask. Sakshi, if anyone have any questions, please you may ask me now. Sure, sir. There was one question by the participant that what is the difference between yoga and yoga? In fact, yoga and yoga both are the same thing, but since yoga has gone to the Western world, so they are using yoga as a yoga. So they have started using it a yoga, but basically both are the same things. But unfortunately, अब इतना योगा बनता जा रहा है, पावर योगा, एयर योगा, हंसने वाला योगा, बहुत बहुत योगा, एयर योगा, तो ये सब रियल में योगा नहीं है या योग नहीं है, ये तो सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेज है जिसमें जिम वाले भी कर लेते हैं, जिम वालों की भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, बट देयर माइंड इज नॉट वेरी पावरफुल, देयर माइंड डजंट बिकम पावरफुल. So yoga means you have a full control on your mind, whether you call it yoga or yoga. Yeah, Sakshi, please. So some are asking about the steps of relaxation, the process which you told, the step-wise process. Even some are asking about the effects of meditation in the day-to-day life and the proper order. You see, what is the process of yoga? In fact, in our older texts, it is not written what is the process of yoga. In fact, there are many types of persons and yoga has, आप यूँ कह सकते हो कि सबके लिए अलग अलग योगा होता है. किसकी क्या मेंटल लेवल है, किसकी क्या फिजिकल लेवल है, उस हिसाब से उसको बताया जाता है. तो इसलिए यह तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, लेकिन इतना जरूर है कि सबसे पहले चूंकि माइंड को ही पकड़ना, माइंड को ही कंट्रोल करना योग का पूरा टारगेट है. और जब आप माइंड को पकड़ लेते हैं तब आप अपने आप को पकड़ लेते हैं. माइंड को पकड़ने के लिए चूंकि माइंड इतना सटल होता है कि आप उसको जल्दी पकड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उसको आपको ग्रॉस चीजों से पकड़ना होता है. तो पहले बॉडी से पकड़ें, बॉडी के सेंसेशन को फील करें, देन आप जब कुछ दिन उसमें मास्टरी हो जाए तो फिर आप ब्रीदिंग पर जाएं, उसमें भी मास्टरी होने लगे तो देन फिर आप अपने विचारों पर जाएं, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करें. तो इस तरह से फिर धीरे धीरे जब फिर कुछ दिन बाद विचार भी आने जाने बंद हो जाते हैं तो देन यू रिमेन इन योरसेल्फ. So that is your own form, real form. Ji. Can we control anger with yoga, with the help of yoga? We can control anger only by yoga. There is no any other things by which you can control your anger completely. You can suppress your anger by any other things, but you cannot control anger by any other things except yoga. There is no any other thing in this whole world except yoga. Because yoga is the only thing which tells you how to control your mind. आप देखें कि सुख और दुख क्या है. जैसे एक मिनट के लिए आप सोचें कि सुख और दुख हम किसी बाहरी चीज में मानते हैं,
हमें ये चीज मिल गई तो हम सुखी हो जाएंगे। हमें हमें कोई गाड़ी मिल गई, मान लो हमने एक टारगेट बनाया है कि ये गाड़ी मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। अब आप जाके देखिए कि वो गाड़ी जिसके पास है, क्या वो सुखी है? तो सुख और दुख गाड़ी में नहीं है, सुख दुख हमारे मन में है। और मन को कंट्रोल कर लोगे तो सुख दुख में कंट्रोल हो गया। गहरी नींद में आप जब सोते हो तो आपको सुख दुख नहीं रहता है, क्योंकि उसमें आपके थॉट्स ऑफ रहते हैं। तो उसमें सुख दुख इसीलिए नहीं रहता है। आप कॉन्शियसली अपने थॉट पर कंट्रोल कर लें तो सुख दुख पर आपका अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। सर आई एम रंजीता। हाँ जी, सर, जी, आई एम डॉक्टर रंजीता फ्रॉम बड़ौदा। नमस्ते। सर हाँ नमस्कार सर, बहुत अच्छा आपने बोले। लेकिन मेरा एक ही प्रॉब्लम है, मेरा सीवियर बैक पेन है। और दूसरा क्या है, सपोज ऐसे आई माय मॉम एक्सपायर्ड, देन माय सिस्टर एक्सपायर्ड रिसेंटली, तो मैं थोड़ा सोच लेती हूँ, सोच लिया तो बहुत सीवियर बने डिस्टर्बेंस माइंड पे आ गया। तो ऐसा कैसा, कभी कभी अभी भी आता है कि रिसेंटली आई लॉस्ट माय सिस्टर। तो ये रिलैक्स करने के लिए मुझे कैसे एक बताइएगा, क्योंकि मुझे एडमिट हो गई थी, डॉक्टर ने बोला सब भूल जाओ। तो मुझे वो बताइए, क्योंकि ये रेकी का जैसे आप बताइए ना, अखिलेश सर है योगी रेकी मास्टर, मैंने रेकी उनसे सीखा है। लेकिन आप जैसे बताए, मैं भी डीप ब्रीदिंग किया, ये किया, अभी सब वही कर रही थी। लेकिन मुझे माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है, उसी से दूर से रहना है, वो मुझे बताइएगा। रंजीता जी, आपका बैक का प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो उसको देख लेते हैं। बैक के प्रॉब्लम में डेफिनेटली अगर आप योग की प्रैक्टिस किसी अच्छे गुरु के साथ करेंगे तो बैक की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। हम लोगों ने यहाँ तक भी देखा है कि अगर डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि आपका ऑपरेशन होगा बैक का, तो वह नहीं भी सर, नहीं, नहीं सर। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाँ यहाँ तक भी हमने देखा है कि वह सर्जरी रुक जाती है। इफ यू डू योगा देन यू कैन कीप गोइंग ऑन योर नॉर्मल लाइफ ओके with the same spine, no any ओके surgery needed. दूसरी चीज कि आपने कहा कि जो है फैमिली में ये प्रॉब्लम हुई है, तो मैं हाँ आपको बता दूं योग इसीलिए तो होता ही है। हाँ हाँ योग सर। योग ही इसमें फायदा कर सकता है। अच्छा। समस्या इस बात की है कि एक हमारा मन होता है और एक संसार होता है। एक हम्म हमारा अपना संसार होता है, एक बाहर का संसार होता है। हम अपने मन को बाहर के संसार के हिसाब से नहीं बनाते हैं, हम अपने मन को अपने हिसाब से बनाते हैं। और अपने हिसाब से कैसे मन हो सकता है? अपने हिसाब से संसार कैसे चल सकता है? क्या आपके हम्म, अपने हिसाब से सूरज निकलेगा? अपने हिसाब से ना चंद्रमा अस्त होगा? तो ना। मृत्यु और जन्म इस संसार के नियम है। कोई न अच्छा। रोक सका है और न रोक पाएगा और न रोक सकता है, कोई तरीका ही नहीं है। तो सो इसको तो हमें एक्सेप्ट करना ही है। अगर आप योग करते हो तो देन एक्सेप्टेंस आपकी बहुत बढ़ जाती है कि व्हाट तो वी कैन नॉट चेंज इन द लाइफ, इन द सिस्टम, वी हैव नॉट टू स्ट्रेस फॉर दैट, एंड व्हाट वी कैन डू। योग आपको यही तो बताता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जो आप कर सकते हो उसको आप फुल्ली कर लो। माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, उसको फुली कंट्रोल कर लो। वो कंट्रोल में आ जाएगा तो स्ट्रेस तो कहीं बचेगा ही नहीं। और जो नहीं कंट्रोल कर सकते उसको छोड़ दो। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। And it is only by practicing yoga, meditation, and it is not possible to get all these things without a good guru and without a practice. So you have to do a sincere and constant practice, consistent practice. सर हाउ टू गेट दैट मेंटल पीस, जो वो दिमाग में बार बार आ ही जाता है, कैसे भूलूंगी? अरे भाई, ये तो यही तो मैं आपको पूरा घंटा भर यही तो बताया कि कैसे कैसे आप पीस हो सकता है। आप जो है अपने थॉट्स को बदलना शुरू करिए। अपने थॉट्स को अपने हिसाब से मत बनाइए, अपने मन को अपने हिसाब से मत बनाइए, उसको तोड़िए। योग यही ओके। बताता है कि आप जो आपका बिना मतलब का मन बना है, आप संसार पे कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको तोड़ो। और मन को आप उस तरह का बनाओ जो रियल है, उस तरह का बनाओ। तोड़ करके एक नया मन बनाओ, और इसी प्रक्रिया को हम योग कहते हैं। तो ये इतना सिंपल भी नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ, और टफ भी नहीं है। तो इट नीड्स प्रैक्टिस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Any other question, please? So I think time is getting over. So if you have any question, you can please ask. Sir, someone is asking that is there any specific time for doing yoga? देखो, हमारे यहाँ तो जो योग के शास्त्रों में, जो पुराने ग्रंथों में लिखा गया है, वह ब्रह्म मुहूर्त का लिखा गया है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है 3 बजे से 6 बजे के बीच में, मॉर्निंग। लेकिन इसकी परिभाषाएं समय के साथ चेंज होती रहती है। उस समय 3 से 6 बहुत
आसान था। लेकिन अब आप रात में अगर काम करते हो, आप कहीं मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो और कहीं इस तरह के काम कर रहे हो जहाँ रात में ही काम होता है, तब फिर क्या करोगे? तो उसमें तो यही है कि जब उठो तभी सवेरा और फिर आप योग का अभ्यास शुरू कर दो। अपने आप को फ्रेश करके you have to make your bowel empty, your bladder empty, and your stomach empty, and then start. Anytime you can do. And if you want to do after your lunch or dinner, then there should be a gap between 3.5 hours between your food and between your practice. Thank you, sir. There are so many questions which we will ask the participants directly contact you because they want some personal questions they are having, which will they directly contact with you. Yeah, definitely it में है। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्वेश्चन सेशन बाद में क्यों रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत होते हैं हमारे मन में। जब हम रिलैक्सेशन कर लेते हैं ना तो सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। हेलो, तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन ना आए इसीलिए हम इस तरह से रिलैक्सेशन पहले करवा देते हैं। बताएं। हेलो। जी मीना जी। हाँ, या सर, गुड इवनिंग। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी मैंने आपका सेशन सुना, बहुत केयरफुली सुना एंड एक ये है कि पर्पसली अगर कोई हम लोग जॉब करते हैं या सर्विस में कोई पर्पसली आपको बार बार हिट कर रहा है, बार बार आपको तकलीफ दे रहा है, तो जी। वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और दैट अफेक्ट्स आवर फैमिली ऑल्सो। Yeah, So definitely, how to definitely. deal with this? Can you tell me, sir? असल में मीना जी ये ऐसा है कि अगर आपको कोई पर्पजली ही परेशान कर रहा है तो मैं Yeah. आपको बताऊं कि उससे आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। Hmm. क्यों हमें स्ट्रेस होता है कि शायद संभव होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है और हम कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह जॉब मिलेगी नहीं या नहीं मिलेगा, इस तरह के ढेर सारी इनसिक्योरिटी और फियर होते हैं। एंड मैं तो आपको बताऊं कि इसमें अगर आप जो है योग का अभ्यास करते हैं ना तो आपको कहीं कोई इनसिक्योरिटी होती ही नहीं है। सारी चीज़ें तो सब अपने आप ही प्रकृति देना शुरू कर देती है और आपको टेंशन और स्ट्रेस नहीं होगा और आप उसको बहुत बहुत अच्छी तरह से उस पर जीत भी जाएंगे। अगर आप जो है उनसे सिंपली इन ए गुड मैनर आप ऐसा बोलें कि हाँ जो है ये आप गलत कर रहे हैं और इसका हम विरोध करेंगे और उसका विरोध करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम टिमिडली उसको जो है सह लें और जो है चुप हो जाएं, नहीं, उसका विरोध करना भी चाहिए और प्रॉपर विरोध करना चाहिए, बट नॉट मेकिंग योर सेल्फ स्ट्रेसफुल। एंड दिस इज पॉसिबल व्हेन यू डू योग। You will not be stressful and the things will also be resolved outside. Okay. Thank you, sir. Yeah. Thank you. साक्षी बहुत बहुत थैंक यू तुमको, तुमने जो है Thank you so much, sir. It was a very informative session. And सबने बहुत पसंद किया सेशन को। Yeah, all the thanks for you, and you were behind all these things and your boss. So very much thanks for you both and all my the participants who listened to me carefully.